एक मैं केस स्टडी शेयर करना चाहती हूँ. सो दिस इज अ रियल केस सिनेरियो. सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हेल्थ है. एनुअल हेल्थ चेक कराया, उसमें भी सब ठीक था. ईसीजी ठीक था, इको रिपोर्ट भी ठीक थी, सब ठीक था. बट अचानक से क्या होता है, कुछ दिन में बेचैनी महसूस होने लगती है. दीज कैन बी साइंस एंड सिम्टम्स. चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर से दबाव है, कोई दबा रहा है. एक घुटन जैसी महसूस हो रही है. कई बार ये बहुत वेग सिम्टम्स भी होते हैं. कई बार हुआ कि हल्का सा पेन हुआ, किसी को लगा कि हो सकता है गैस्ट्राइटिस होगा, या कुछ हैवी एक्टिविटी की, कुछ काम किया, उसकी वजह से हो सकता है. सो आई मीन एनी सिम्टम शुड नॉट बी इग्नोर्ड. कोई भी सिम्टम नया है, ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी साइंस. इरिस्पेक्टिव ऑफ आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में क्या आया है, क्या नहीं आया, आपकी हेल्थ कैसी है, आप थिन बिल्ड हैं, आप अच्छा खाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल हो रहा है, तो भी आपको उन साइंस एंड सिम्टम्स को जरूर सुनना है. Any pain that is there, it may be referred to your arm or shoulder, left side. It may be in the center of the chest. It may be referred to the back. It may not be referred to the back. और आपको बेचैनी इतनी हो रही है कि आप सो नहीं पा रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है. कई बार लगता है कि एक लोनलीनेस का फीलिंग हो सकता है, डिप्रेशन का हो सकता है. बट इट कैन बी द सिम्टम्स ऑफ समथिंग गोइंग ऑन रॉन्ग विद द हार्ट ऑल्सो. तो अगर ऐसा लग रहा है कि आप सो नहीं पा रहे हैं, लगातार ऐसा 2-3 दिन हो गया है, तो कुछ भी अनयूजुअल सिम्टम आपको लग रहा है अपनी बॉडी में, तो लिसन टू योर साइंस. क्योंकि आपकी बॉडी आपको बिल्कुल सही बताती है, सही आपको एडवाइस होता है. सो देर इज ऑलवेज अ थिन लाइन बिटवीन द हेल्थ कंसर्न एंड दी फियर्स ऑफ दी बीइंग हेल्दी. कि मुझे कुछ हो तो नहीं गया है, मैं हेल्दी हूं ना, कहीं मतलब कुछ डर भी लगा रहता है. एंड कई बार सुनने के बाद भी कि इसको ऐसा हो गया, उसको ऐसा हो गया, तो भी बहुत डर बैठ जाता है. तो सो जस्ट बी माइंडफुल. डरने की जरूरत नहीं है. दैट इमोशन ऑफ फियर. So, do you know simple lifestyle changes can make a big difference to your overall heart health? So, it's all about what are your habits. The any kind of heart ailment, it doesn't develop overnight. It takes time to develop, owing to the habits that you're following in day-to-day life. So, very important things: keep a check on your blood pressure, keep a check on your blood sugar levels, keep a check on your cholesterol levels. They should be optimum. These three things. And next, avoid too much of sugar, refined foods, outside foods, refined flours, and avoid smoking, cut on alcohol, and if you can completely avoid it's good, and opt for healthy eating. Then again, avoid the habit of taking stress. I would say that it's always the habit, it's not the stress. Actually, you can stress out even for the simple things if you are in a habit. So avoid a habit of taking stress and go for exercise. Hit the gym or hit the dance floor or go for swimming or just go for brisk walk, running, whatever you love and whatever is feasible for you. So remember, prevention doesn't has to be very complicated. It should be consistent. Your heart is your life force and it needs daily care and daily love from you. Besides this, two very important points at the end I would like to emphasize is your sleep. Do sleep every day 7 to 8 hours. During this time, your heart heals, your heart recovers, your heart rejuvenates. Don't extract your gym timing or your leisure timing from your sleep timing. Okay? Because that creates a sleep debt. I'll be talking about sleep debt in my upcoming videos, how it is created and how you have to take care of the sleep debt. Now, the next thing is emotions. Your emotional health definitely matters and heart responds very well to your emotions. So avoid any kind of long-term anger, shouting, anxiety, or chronic grief situations. Keep away from yourself and try to heal from such emotions and situations as soon as possible. Have your friend circle, you can connect with people. So follow 3 C's: commitment, compassion, and calmness. So follow for more health wisdom that empowers your health. Hello everyone, I'm Dr. Niharika. Today I'm going to talk about heart health. It's very important to keep your heart healthy for your overall well-being and longevity.
And do you know, the good news is that your heart health is completely in your hands. So I'm going to talk about very simple steps that how you can keep your heart happy and healthy. आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में हाइपरटेंशन है ही, तो हमें तो होगी ही होगी. आई मीन यू मे थिंक दिस कि हम कितना ही अच्छा लाइफस्टाइल कर लें तो क्यों ना अच्छे से खा पी के ही सब कुछ करें. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इवन इफ देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री, अ पर्सन कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन टू completely zero by following all those risk factors I told in the video initially. Can bring some changes in their diet also. अपना डाइट और वेट मैनेजमेंट इस तरीके से रखें कि वेस्ट सर्कमफ्रेंस फॉर वेमेन इट शुड बी 80 सेंटीमीटर, नॉट टू क्रॉस दैट, एंड फॉर मेन इट शुड बी 94 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन दैट. आप क्या कर सकते हैं, अगर फैमिली हिस्ट्री है और इन रूटीन भी अगर ये हैबिट डालते हैं तो इट इज अ गुड थिंग. I would say that age is just a number. It is not depending upon कि age की अरे इस age में तो होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. You can be healthier than a person who's 10 years or 20 years younger to you. So try to cut on the salt intake and take potassium rich foods like coconut water लेते रहिए, कभी कभी banana ले सकते हैं, spinach ले सकते हैं, depending upon other health conditions as well. And ट्राई टू डू रेगुलर एक्सरसाइज. उसमें भी अगर आपको किसी दिन एक्सरसाइज नहीं करनी है तो फॉर 2 consecutive days यू शुड नॉट टेक रेस्ट. सिर्फ एक दिन का रेस्ट अलाउड है, बट देन यू हैव टू कीप मूविंग. आप मूविंग रहेंगे तो आपकी बॉडी भी चलती रहेगी. देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, besides this, cut on excess of caffeine intake, cut on excess of alcohol intake. ये आपको डिसाइड करना है. As I said in the beginning of the video that आपका हार्ट कितना हेल्दी है, it is all in your hands. आप जितना अल्कोहल इनटेक, कैफीन इनटेक कट करेंगे उतना आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, है ना. जितना अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, अपनी डाइट पर थोड़ा ध्यान देंगे. लेट्स टॉक इन वेरी शॉर्ट अबाउट कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे मेंटेन करें. सो कोलेस्ट्रॉल में देर इज हाई डेंसिटी लिपिड, HDL है, LDL है, VLDL है, एंड वेरी लो डेंसिटी लिपिड है, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, वेरी इंपॉर्टेंट. सो सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है, बट ब्रॉडली आई वुड से हियर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द मेंटेनिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सैचुरेटेड फैट्स कम लेना है, ट्रांस फैट्स कम लेना है, डीप फ्राइड फूड्स नहीं लेना है. जब भी आप फ्राई करते हैं, पराठा बनाते हैं और उसमें घी यूज करते हैं तो उस घी की केमिकल फॉर्म चेंज हो जाती है. ऑलिव ऑयल का कोई फायदा नहीं रहता, उसकी केमिकल फॉर्म चेंज हो जाती है. ऑलिव ऑयल इज गुड इफ इट इज एडेड टू दी सैलेड्स. ठीक है, तो इसलिए फ्राइड फूड्स मत लीजिए. ट्राई टू गेट योर फैट इनटेक फ्रॉम दी नट्स. नट्स भी लिमिटेड अमाउंट में, ऐसे मुट्ठी भर भर के नहीं खाना है. And try to take at least 3 different fruits in a day. Try to take 2 servings of salads. It's good. And you can take omega-3 as a supplement. And be mindful, omega-3 or omega-6 का supplement avoid कीजिए, because omega-6 is already surplus in your the oils and other foods that you are taking. Omega-3 is less, so omega-3 का supplementation लेना चाहिए. So intake of fiber is good. That will help lower the cholesterol levels. Hydrate yourself well and be mindful when you are having the fats. जो आप फैट घर में खाते हैं वो इतना नुकसान नहीं करेगा. लाइक आपने कोकोनट ऑयल यूज किया कुकिंग के लिए, मस्टर्ड ऑयल यूज किया या सीसम ऑयल यूज किया, दैट इज गुड. बट अगर आप पिज्जा, बर्गर, चीज और पैटीज, इन सब में जो आप ऑयल खा रहे हैं, once in a while I think it's fine. It depends again upon your पर्सनल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, आपकी गट हेल्थ कैसी है, सब पे डिपेंड करता है आप कितना रेजिलियंस रख पाते हैं. सो दिस इज द सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके हार्ट को मीठा सुनना पसंद है, मीठा बोलना पसंद है, उससे वो हेल्दी होती है, लेकिन मीठा खाना पसंद नहीं है. तो अगर आपको स्वीट टूथ है तो इट इज द बिगेस्ट मिथ फॉर पीपल हु टेक टू मच ऑफ स्वीट. उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि इट इज नॉट हार्ट फ्रेंडली, इट इज नॉट हार्ट हेल्दी, और आपके हार्ट को बिल्कुल पसंद नहीं है. उसको सिर्फ मीठा सुनना, मीठा बोलना, प्यार से बोलना, नॉर्मल वॉइस में बोलना पसंद है. अवॉइड शाउटिंग, अवॉइड cribbing anyone, avoid having grudges for anyone. So be compassionate, connect with people and be calm
and be committed to your life, to your words. Stay happy and stay healthy. Keep your heart happy and healthy. Try to take whole grains. Try to get the multigrain chapatis. One more thing that I have observed is people are following the extremes of diets. या तो सैलेड्स ही खाते जा रहे हैं, फ्रूट्स ही खाते जा रहे हैं, सिर्फ मल्टीग्रेन खा रहे हैं, गेहूं बिल्कुल छोड़ दिया है. नो, योर जीन्स आर मेड इन सच अ वे, आपका जेनेटिक मेकअप ऐसा है क्योंकि आपके एंसेस्ट्रल से ही आप वो वीट खाते आए हो, आप उसको एकदम से नहीं छोड़ो. दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सट्रीम डाइट. वो फिर से रिवर्स वे में वर्क करेगी. कहते हैं ना, किसी भी चीज की अति बुरी होती है, तो इट अप्लाइज फॉर ईच एंड एवरीथिंग. बहुत एक्सट्रीम में आप एक्सरसाइज करेंगे तो ओवर यूज, वियर एंड टीयर होना शुरू हो जाएगा. बहुत एक्सट्रीम में आप हेल्दी फूड खाएंगे, वो भी अच्छा नहीं है.